Hello class 8th. Today we are going to start with the new chapter Visual Studio Community 2017. Visual Studio Community is basically a programming language. Visual Studio Community जो है वो एक programming language है जिसको हम लोग अब यूज़ करना सीखेंगे. A programming language is a special language used by a programmer to communicate with a computer. Programming language वो special language होती है जिससे programmer communicate करता है कंप्यूटर के साथ में. Visual Basic is a programming language that provides user-friendly application with graphical user interface. Visual Basic एक ऐसी user-friendly application है जो graphical user interface provide करती है जिसमें आप graphically देख सकते हो कि आप क्या बना रहे हो. Visual Basic is a well-known programming language created and developed by Microsoft. Visual Basic जो है वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको क्रिएट और डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने. तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और एक GUI प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पर आप देख सकते हो कि आप क्या बना रहे हो. टेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन्स है, क्या आप यूज़ कर रहे हो वो आप चेक कर सकते हो. Introduction to Visual Studio Community 2017. Visual Basic 2017 is a part of Microsoft Visual Studio Community 2017 package. Visual Studio Community 2017 का एक पार्ट है Visual Basic 2017. Visual Basic 2017 is bundled together with other Microsoft programming language like C#, C++, JavaScript and other development tools in the integrated development environment called Visual Studio Community. Visual Basic 2017 है वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के साथ में कनेक्टेड होती है जिसमें C है, C++ है, C# है, JavaScript है और ऐसे कुछ अदर डेवलपमेंट टूल्स होते हैं और ये सब जो है ये एक एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसको Visual Studio Community 2017 बोलते हैं. Any action like pressing a key or clicking a mouse performed in a Visual Basic is called an event. कोई भी अगर आप वर्क करते हो जैसे अपने माउस का क्लिक करना या कोई की प्रेस करना तो उसको हम इवेंट कहते हैं. Therefore, Visual Basic is an event-driven program. इसलिए Visual Basic जो है वो एक event-driven programming language भी है. Modes of Visual Basic programs. Visual Basic program के कुछ modes हैं जिसमें the first one is design mode. The mode is used to write the statement for a program. Here, the programmer play a vital role. Design mode जहाँ पर आप अपना statement लिखते हो प्रोग्राम के लिए. Run mode. The mode is used to execute the statement written by the programmer. Here, the result is shown for which it has been designed. Run mode जहाँ पर प्रोग्राम को execute करके देखा जाता है कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. The third one is break mode. The mode appears when the application you are trying to run contains error. Here the execution is paused and the user is warned to remove the error. ब्रेक मोड वो मोड है जहाँ पर आपने कोई प्रोग्रामिंग को रन किया, प्रोग्राम को कोई स्टेटमेंट को रन किया और उसमें कोई एरर आ रही है तो वहाँ पर वो उसको रोक देगा, पॉज कर देगा और आपको बताएगा कि एरर किस जगह पर है और आपको उस एरर को रिमूव करना है. सो ये 3 मोड्स हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को अच्छी तरीके से बनाकर चेक कर सकते हो, रन कर सकते हो और देख सकते हो कि वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. स्टार्टिंग विजुअल बेसिक 2017 विजुअल बेसिक 2017 को आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो, उसके लिए कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, उनको यूज़ करना है आपको. द फर्स्ट वन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड लुक फॉर विजुअल बेसिक 2017. आपको विजुअल बेसिक 2017 को चेक करना है तो एक नई विंडो अपीयर होगी जहाँ पर आपको उसका स्टार्टेड प्रोग्राम दिखेगा. For creating a new program, follow these steps. Step 1, click on the create new program. Create new program पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो अपीयर होगी. Here you need to click on Visual Studio Basic पर आपको क्लिक करना है और क्लिक ऑन Windows Form App. Windows Form App पर क्लिक करना है. यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे Windows Form App पर एंड देन क्लिक ऑन OK बटन. जैसे ही आप OK बटन पे क्लिक करेंगे आपका न्यू फॉर्म क्रिएट हो जाएगा. कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक 2017 के कुछ कंपोनेंट्स हैं. उन कौन से हैं, लेट्स चेक दीज कंपोनेंट्स. कौन से कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं. द फर्स्ट वन इज टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द विंडो, सबसे ऊपर होती है. देन
It is basically display the name of the currently open project. Then menu bar. Menu bar contain various menus like file, edit, view and project. ये सारे menus इसके अंदर होते हैं और बहुत सारे menus available होते हैं. Then toolbar. Toolbar contains frequently accepted tools. These icons are taken from the tools inserted from of accessing various menus. जो भी आप menus use कर रहे हो. Then form window. Form window is blank window where we place control elements like toolbar, toolbox and other thing. It is basically acts and the interface through which a user interacts with an application. Then property window. Property window contains an object drop down list and a list of properties. जो भी properties आप use कर रहे हो उनकी शो करती है. आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया या कोई बटन लिया, जिसकी भी जो भी आप ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज शो करता है. देन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स द फ्रेम एंड एप्लीकेशंस. यहाँ पर आपको अदर एप्लीकेशंस मिलती है जिसमें आप यूज़ कर सकते हो. देन टूल बॉक्स कंटेंट ऑफ वेरियस कंट्रोल्स. टूल बॉक्स के अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, लाइक बटन्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, मेमोज होते हैं, अदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो भी आप अपने फॉर्म के अंदर या अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाहते हो. आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हो टूल बॉक्स की. एंड द लास्ट वन इज कोड विंडो. कोड विंडो भी होती है एक, जिसके थ्रू आप कोड डिस्प्ले कर सकते हो अपने एक्सप्लोरर पर. अपने कोड लिखते हो जहां पर आप अपने प्रोग्राम का. सो दीज आर द विंडोज अवेलेबल ऑन अ विजुअल बेसिक 2017 पर ये कुछ विंडोज अवेलेबल होती है. सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास. विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.